We'll start in next 40 seconds. आप सब मुझे देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज मजा बहुत आने वाला है. I'm very excited to host this one. Okay. But बच्चों से ज्यादा मुझे डर लग रहा है because at time मैं बात करते करते जज्बातों में बह जाता हूँ और I forget the language I use. So, अगर मैं कुछ भारी भरकम शब्द बोल दूं तो please excuse me. ठीक है? Consider me as a part of your family. Shall we start? I think we must start now. So the people who have just joined us, very good morning and good afternoon to all of you. This is Sahil Khanna and request all of you to keep yourself muted. Number one, number two, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं during this session, you would definitely get a chance. You would all surely get a chance. And apart from that, मैं लास्ट में ओपन राउंड कर दूंगा FAQs का. आप कुछ भी पूछ सकते हैं. अगर आपको पूछने में सबके सामने हेजिटेशन है तो आप चैट पे मैसेज भेज सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द सेशन सो दैट आई कैन गो थ्रू द चैट एंड आंसर योर डाउट्स. आई रिक्वेस्ट द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन, मुझे बच्चा और पेरेंट्स साथ साथ दिखेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आई कैन एक्चुअली सी दैट द किड इज सिटिंग. एल्स शिकायत मैंने आपको पहले ही बताया, मैं शिकायत लगा दूंगा. Okay, so jokes apart, first of all, thank you so much for taking time on a Sunday. Let's get started now. So we'll keep it short, we'll keep it concise, but जब तक तसल्ली नहीं होगी हम बात करते रहेंगे. और मैं बीच बीच में अटेंशन चेक करूंगा. मैं किसी भी बच्चे का या पेरेंट का नाम जो स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं उनका बोल दूंगा. बच्चे तो मैं सबको जानता हूँ ऑलमोस्ट, और मैं पेरेंट से कुछ गाना गुना गिलवाऊंगा. Just kidding. So you have to be attentive. It's for you and it's for all of us, and it's for the kids. Okay guys, now we are starting. Now I'll be very honest with you. Directly I am not involved in teaching of any student in any batch of 11th, but एक महीना पहले से मैंने कुछ स्पेशल वर्कशॉप लेनी शुरू की, which happens on a Friday, which is a 2.5 hour workshop which I personally take on Friday. And based upon those workshops, मैं थोड़ा डर गया हूँ. मेरा जो डर है वो ये है कि इस पैंडेमिक ने बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया. और मैं अब for next whatever time we are talking, let me be very honest with you that I'll not be diplomatic. हो सकता है इस सेशन के दौरान बहुत सारे बच्चे मुझसे नाराज हो जाएं, बट मैं किसी का नाम नहीं लूंगा. I'll talk generally because eventually I'm answerable to your parents. बच्चे, you have to understand this, and you are answerable to your own conscience, and I am also answerable to my own conscience. So I'm not going to mince my words, but ये आपके benefit के लिए. So now what I'm saying is, मैं performance से ज़्यादा जो देख के शॉक रहा हूँ, the word is shock, is the casual attitude of the kids. I should not say it, but I see actually dead people walking in the classrooms. No passion, no competitive spirit, no purpose, just living through the motions because they have taken sciences. 90% of them, unfortunately, because of pandemic, are almost sailing in the same boat. And few who have not even attended my workshop, I don't know कहाँ वो busy हैं. बहुत busy हैं हमारे बच्चे बेचारे, जिनको एक हफ्ते में एक दिन टाइम नहीं निकाल पा रहे इस वर्कशॉप का because of any express reason. I have come to a conclusion that we need to take some drastic steps
to bring them back on track, because जो ये 1.5 साल निकला है, 1.25 साल, I should be precise, has actually created havoc in their lives to an extent that the numerical ability has gone out of the window, the thinking ability has gone out of the window, the writing ability has gone out of the window, and above all, what has gone out of the window is, as I mentioned earlier, a lack of zeal, passion. मैं बच्चों को भी मैंने लास्ट वर्कशॉप में बोला, मैं आप सबके सामने बोलता हूं, I see dead people walking in the classroom. And मैं blame नहीं डाल रहा बच्चों पे, but this is one of the biggest effect of COVID. जो वो लास्ट 1 साल निकला, जिसमें बच्चा सारा टाइम ऑलमोस्ट घर पे था, ऑनलाइन पढ़ रहा था, एंड इट हैज, मुझे जितना इम्पैक्ट मैंने 11th के बच्चे पे देखा है, उतना मैंने किसी और बच्चे पे नहीं देखा. रीजंस क्या है? पहले ही 10th के बाद 11th में, साइड से 10th के बाद 11th में सिलेबस बहुत बढ़ जाता है, उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है. Then there was a lot of indecisiveness about result, कैसे आएगा, कितना आएगा. Then there is a lot of confusion and chaos about school, and उस चक्कर में the बच्चा has lost track. We need to understand together, it's not a blame game. We are left with brutally 18 months in JEE exam and 22 months to 23 months in the NEET examination. And these days are countable. I repeat, these days are countable in number. मतलब जो चीजें मैंने क्रॉस चेक करी, जो मई में पढ़ाई गई हैं या जून में पढ़ाई गई हैं, वो किसी हद तक नहीं आती हैं जब मैं उनको सितंबर में या अगस्त एंड में वर्कशॉप्स में बच्चों की चेक कर रहा हूं. एंड द रीजन इज वेरी सिंपल. मुझे आज आप सबसे एक, और ये सबका हाल है, जितने भी बैठे हैं, 99% आई एम सेइंग, आपको कोई बाद में बच्चा मैनिपुलेट करे कि ये मेरे बारे में नहीं था. अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना होती तो मुझे इतने बड़े लेवल पे सेशन होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़नी थी. इट इज अ मास प्रॉब्लम. अगर 2-4 एक्सेप्शनल बच्चे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं उनको पर्सनली, उन पेरेंट को मैसेज डाल दूंगा कि this problem I have not faced in you. Probably one of the kid I can see right now, Sambhav, did not have that kind of a problem. He is doing fine in the classroom also. And एक दो और हैं जो उनको मैं भी देखते देखते मैं बता दूंगा ना. Now coming back, मतलब we have excuses, and coming to the biggest reason of all this is, मुझे अपने एक भी बच्चे के पास, this is a request to every parent, मोबाइल फोन नहीं चाहिए. I repeat, consider it at my request or my humble folded hands request. किसी भी बच्चे के पास अगले 1.5 साल के लिए मोबाइल नहीं होना चाहिए. लेट मी जस्ट कंप्लीट. मोबाइल, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लगा रहा है, अगर आपका डर कोविड है तो आई रिस्पेक्ट दैट फियर. वी कैन नॉट फोर्स एनीवन. अगर आपका डर कोविड नहीं है फिर भी बच्चा ऑनलाइन क्लास लगा रहा है, तो आप गलत कर रहे हो अपने बच्चे के साथ. प्लीज काइंडली उसको ऑफलाइन भेजिए. बर्बादी को और मत बर्बाद होने दीजिए. प्लीज लेट्स स्टॉप इट राइट अवे. आई रिपीट, इफ योर फियर इज कोविड, आई एम कंप्लीटली ओके विद पूरा साल 2 साल ऑनलाइन चलाने के लिए, जब तक ये कोविड बिल्कुल खत्म नहीं होता. पैरेलली ऑनलाइन विल रन. बट इफ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ कोविड, सिर्फ बच्चा कंफर्ट जोन में है और आपको ये बोल रहा है मैं घर से बेटर पढ़ लेता हूं, मेरे को जाने में टाइम वेस्ट होता है, आस्क मी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एन ऑफलाइन क्लास. उनको भेजिए. नाउ कमिंग बैक टू माय मोबाइल वाला पॉइंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ बच्चा कौन से मर्जी बैच में है, आप प्लीज उसके पूरे डे में 1.5 आवर्स आप नोट कर लीजिए चीजें. मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा. एवरी पेरेंट लिसन टू मी वेरी केयरफुल. ये चीज मैंने 12th में की थी, अभी लास्ट पीटीएम पे. टचवुड, मैं आप लोगों की जब पीटीएम हुई अभी, तो उस टाइम पे किसी और रीजन से मैं अवेलेबल नहीं था उस संडे को या सैटरडे को, मैं सबसे नहीं मिल पाया. बट 12th की जब उसके अगले हफ्ते पीटीएम हुई, ऑलमोस्ट मैं आई मेट एवरी पेरेंट.
एंड उसमें मैंने रिक्वेस्ट और डंडे से पेरेंट्स को बोला कि मोबाइल नहीं चाहिए. 1.5 hours has to be fixed in a day for the total usage of mobile phone except online class, and online भी जो बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं सिर्फ उनके लिए. एंड वो 1.5 hour के अलावा बच्चा आपको मोबाइल नहीं देगा पढ़ने के टाइम. अब वो पूरे दिन आप ही के पास मोबाइल रहेगा. वो आपसे 1.5 घंटा दिन में एक बार 2 बार 45 मिनट्स के स्लॉट के लिए मोबाइल यूज करने के लिए ले सकता है. द पावर इज नॉट विद द चाइल्ड, द पावर इज विद यू. नो, अगर हम ये नहीं कर सकते हैं एज अ पेरेंट, मैं आपको अभी फ्रीडम देता हूं टू लीव द मीटिंग एंड आप मंडे आके अपना जेनेसिस से रिफंड लेके जा सकते हैं. बिकॉज मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता उन बच्चों का जिनके पास मोबाइल है. ये इनकी गलती नहीं है. बच्चों को मैं ये एड्रेस करना चाहता हूं जो सुन रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं है. मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आप इतने एडिक्टेड हो चुके हो. अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन किड्स, माय स्टूडेंट्स, वॉकिंग ऑन द रोड using a mobile phone, not bothered even about the traffic. I have seen kids in the break time, जो break होती है 2 lectures के बीच में, not talking among themselves in their phones. This is not great signs. I repeat, this is not a great sign. हम सब एक साथ हैं? Are we guys on the same page so far? कि जो मैं बात कर रहा हूं वो हमारे ऊपर से निकल रही है? Parents, are we on the same page? Yes, sir. Yes, sir. So अब करना क्या है? पहली चीज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, तो पहली चीज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हम मोबाइल यूजेज को बैन कर देंगे. मैंने बैन करने का मतलब, मैं इतना जल्लाद नहीं हूं कि मैं 0 करने को बोल रहा हूं. मैं पूरे दिन में 1.5 घंटा बोला. 45 मिनट्स की 2 विंडोज दे दीजिए, डिपेंडिंग आपका बच्चा कौन से बैच में आ रहा है, सुबह वाले या शाम वाले, उस हिसाब से 45 मिनट्स की 2 विंडो. अगर कोई पेरेंट को बच्चा इमोशनल ब्लैकमेल करता है, मैं आपको बताता हूं बच्चे कैसे चेप रहे हैं पेरेंट को. हमारा होमवर्क मोबाइल पे आता है. ऐसा कोई होमवर्क नहीं है जो मोबाइल पे आता है. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. नंबर 1, हमारी असाइनमेंट्स मोबाइल पे आती हैं. महा झूठे. ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं है जो मोबाइल पे आता है. अगर मोबाइल पे असाइनमेंट आ रही है तो उसकी हार्ड कॉपी भी मिल रही है. एक्सेप्ट अगर आपका बच्चा सिर्फ ऑनलाइन लगा रहा है, वो अलग बात है, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है. आप असाइनमेंट को प्लीज कलेक्ट कर लीजिए सेंटर पे. कल से हम लोग अपना खुद का स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, अपनी बुकलेट्स. तो वो स्कोप ही खत्म हो जाता है बच्चे के पास कि मुझे ये करना है, मुझे गूगल पे पढ़ना है. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबको, पेरेंट को, बच्चों की तो मैं लाशें बिछा दूंगा अगर उन्होंने इसको ओबे नहीं किया. दैट देयर इज नथिंग व्हिच इज ऑन गूगल व्हिच इज नॉट देयर इन बुक्स. हमने बुक्स पढ़ने की हैबिट छोड़ दी है और वी आर रेडी टू लुक फॉर इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशंस. इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन से हमारा बेस नहीं बनेगा. अगर आपने स्कोर्स जो आपको मैंने भेजे थे कल मैम के थ्रू, आपको ऑफिशियल नंबर से डेफिनेटली स्कोर्स आए होंगे पर्सनल जो इस टेस्ट में थे. और कई इतने महान बच्चे हैं जो टेस्ट नहीं देते. एंड आई एम शॉक्ड कि हम सपोर्ट कर रहे हैं और या हम एज अ पेरेंट हम जानते ही नहीं है टेस्ट हो रहा है, जबकि हर महीने के 1st to 7th पे डेट में पूरे महीने का शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड टेस्ट शेड्यूल एक ही बार पूरे महीने का डल जाता है जेनेसिस की ऐप पे. बट हम ऑक्यूपाइड हैं. आई अंडरस्टैंड आप अपने शेड्यूल में पेरेंट्स बिजी हो गए, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. बट यहाँ पे अगले 1.5 साल अगर हम साथ नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा. वी हैव किड्स नॉट गिविंग द टेस्ट, और ये बहाना है, मैं नाम नहीं ले रहा, इसी सेशन में बच्चा बैठा है, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे. We have kids who have the guts to tell us कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, मैं आउट ऑफ स्टेशन था. We have kids who tell us कि सर हम बीमार थे, we cannot give the test, and डायरेक्ट मैसेज करते हैं ग्रुप पे, no involvement of parent. We cannot give this power to them. Power क्या देनी है? I'll tell you the power which is to be given to the kids at the end of the session. But what I'm telling you is, we मोबाइल यूजेज बैन. कितना? 1.5 घंटा दिन में.
आप बच्चे से अभी वर्कशॉप के बाद कोई और बात नहीं करोगे, सिर्फ एक चीज पूछ लेना, कौन सा 45 मिनट्स पूरे दिन में 2 बार मोबाइल चाहिए। उस 45 मिनट्स में आप बिना पूछे मोबाइल उसको दे देना, 45 मिनट होते ही ले लेना। आपको वो मोबाइल नहीं देता वापस, 5 मिनट मम्मी पापा 5 मिनट दे दो, एक कॉल, एक मैसेज, एक व्हाट्सएप चैट, एक इंस्टाग्राम स्टोरी, आप पर्सनली मुझे मैसेज डाल देना, मैं अपने आप देख लूंगा इनको। हमने डरना नहीं है बेटा, हम आप लोगों से डरते नहीं हैं, हम सिर्फ उस कलेश से बचते हैं जो आप लोग कर देते हो जब आपको आपके मतलब की चीज नहीं मिलती। लेकिन एक चीज याद रखना, पेरेंट्स हम लोग हैं, आप नहीं हो। लेकिन जब टाइम आएगा डंडा उठाने का और वो आ गया है तो हम डंडा उठाएंगे और आपको कल से नहीं, आज से डंडा उठा के दिखाएंगे। एंड कल से आप अपने होमवर्क का लेवल और स्ट्रिक्टनेस का लेवल क्लासरूम में देखना, प्यार पूरा, आप लोगों के लिए जान हाजिर है, लेकिन कैजुअल एटीट्यूड वाले बच्चों को मैं एंटर नहीं करने दूंगा सीढ़ियों पे। Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Awesome. क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैंने एक चीज क्लियर की, होमवर्क कुछ नहीं आ रहा है आप पे, सॉरी उस पे अपना वर्कशीट सब कुछ हार्ड कॉपी मिलती है। अगर आपका बच्चा किसी रीजन से ऑनलाइन क्लास भी लगा रहा है, आप किसी भी नियरेस्ट ब्रांच पे जाके असाइनमेंट वर्क मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए। बच्चे को वो ऑफलाइन ही करवाना है, मतलब ये सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी में काम कराना। नाउ इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाउ टू हेल्प किड्स इंप्रूव इवन फर्दर, हमने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है जिसकी एक हैंडबुक आपको शायद व्हाट्सएप पे मिली होगी। आपको मिली थी एक व्हाट्सएप पे हैंडबुक लास्ट वीक, कईयों ने वो पढ़ी नहीं है। मैंने, प्लीज आप कुछ हम भेजते हैं तो उसको पढ़ लीजिए। वी आर ट्राइंग नॉट टू वर्क, आई पर्सनली डू नॉट हैव अ विजन टू वर्क एज अ टिपिकल कोचिंग इंस्टीट्यूशन, मुझसे नहीं होता वो, आई वर्क इन अ वेरी वेरी अनऑर्थोडॉक्स वे। तो उस हैंडबुक को आप पढ़ लीजिए। मैं आपके साथ एक शीट दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, प्लीज देखिए। कैन यू सी दिस? थोड़ा सा हाँ जी कर दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा दिख रही है कि नहीं। Yes, sir. Awesome. अब आप अगर Yes, sir. इसमें ऐसी एक शीट विद इन नेक्स्ट कमिंग वीक हर क्लास में इन द फॉर्म ऑफ अ बिग प्रिंट आउट, फुल साइज प्रिंट आउट क्लास में लगी होगी। क्लास में आप लोगों को मैं इस शीट का लिंक भेजूंगा, हर पेरेंट के पास इसका लिंक होगा, अभी नहीं, आने वाले कुछ दिनों में। नाउ दिस शीट, अभी ये जीरो से देख के डर मत जाना, अभी हमने भरना नहीं शुरू किया। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, कोई भी बच्चा उठा लेते हैं, लेट्स सपोज अर्पण माथुर, this is 11th member. Now Arpan Mathur will be evaluated on 10 parameters, which are, number 1 is, if you see on the top is classroom participation, number 2 is the zeal to learn, number 3 is content का मतलब zeal to learn clear है सबको कि कितना curiosity है क्लास में या सीखने की। पहला पार्टिसिपेशन कैसी है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी। नंबर 3 इज कंटेंट। नाउ कंटेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूं। कंटेंट विल बी चेक्ड बाय नंबर 1 जो हम टेस्ट लेते हैं ऑब्वियसली, नंबर 2 वी विल स्टार्ट होल्डिंग, इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड होल्डिंग सेमिनार्स इन द क्लासरूम्स। 20 की ब्रांच में फिजिक्स का सेमिनार हो चुका है। व्हाट विल हैपन इन अ सेमिनार, बच्चों को, ये हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चों को टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, वो टॉपिक्स उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स / बायो के टॉपिक्स मिलेंगे। वो टॉपिक्स कौन से मिले हैं वो आपके साथ भी शेयर होंगे, पेरेंट के साथ भी। बच्चे को उस टॉपिक पे 5 से 10 मिनट की प्रेजेंटेशन या वर्कशॉप या पूरी टॉपिक अपने इन पे तैयार करके लाना है। वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे हम, कुछ बच्चों की जो धीरे धीरे अच्छा कर रहे हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द बैच, फॉर एग्जाम्पल अगर कशिश वो सेमिनार दे रही है तो बाकी सारे बच्चे उसके बैच के उससे आफ्टर शी हैज डिलीवर्ड द टॉपिक क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। दिस इज हाउ वी वुड लर्न टू अंडरस्टैंड द कंटेंट नॉलेज कितना है बच्चे का। दिस इज हाउ द कंटेंट मार्क्स वुड बी गिवन। आर वी क्लियर? हम सब साथ हैं,
हम सब Yes. साथ? Yes, sir. Awesome. Fourth is, I think, very clear focus in the class. Fifth is doubt taking ability. Fifth is classroom punctuality. Punctuality means एक तो बच्चा रेगुलर कितना है क्लासेस में, सेकंड टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Then is the classroom notes, the quality of classroom notes. Randomly registers check होंगे जिसके बेसिस पे क्लियर दिखेगा बच्चे के नोट्स की क्वालिटी. We have advised kids to make notes with a multicolored pen, 3-colored pen, because ये जो नोट्स बनाए जा रहे हैं ये अगले साल के एंड तक काम आएंगे, बिकॉज सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में +1 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. देन इज द होमवर्क सबमिशन एंड द क्वालिटी ऑफ होमवर्क. होमवर्क रेगुलर आ रहा है, कैसा आ रहा है, कॉपी चेपे मार के तो नहीं आ रहा. Behavior with other batchmates, this is an interpersonal skill which we want to develop in the batchmate and the kids. And last is creativity in solving or answering a challenging problem. Now अब आप थोड़ा सा ध्यान सुनना, ये शीट का, ये मास्टर शीट है. अगर आप पेज के बॉटम पे देखेंगे यहाँ पे लिखा है मास्टर शीट 11th. अब इस शीट के अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो सारे 11th के टीचर्स के नाम लिखे हैं. लाइक आदित्य, दिस इज अ zoology mentor. Pratibha, she's a botany mentor. Then Priya, she's a chemistry inorganic mentor. Then Pooja ma'am, again organic mentor and this. Then physics, Devashish and Vishal. अब होगा क्या, जो आपको मैंने शीट दिखाई है, मास्टर शीट जिसको मैंने बोला ये वाली, इस शीट पे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि अगर अदिति बत्रा की मैं बात करूं, अदिति बत्रा का सपोज जो फोकस इन द क्लास में स्कोर आएगा वो सारे टीचर्स का जो स्कोर होगा जो वो अपनी रिस्पेक्टिव शीट्स में भरेंगे उसका एवरेज आउट स्कोर आएगा. क्लियर? Yes, sir. हम साथ Yes, sir. Clear. गुड. तो मैंने क्या बोला, अगर हम किसी बच्चे के किसी पैरामीटर का स्कोर, आपको जब ये शीट आपके साथ शेयर होगी, आपको बकायदा अपने बच्चे के ये 10 पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस दिखेगी. ठीक है? तो आप जब वो परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसको मैं आपको समझना सिखा रहा हूं, बिकॉज पहली परफॉर्मेंस आप लोग देखेंगे 13 सितंबर को. 13 सितंबर को फर्स्ट टाइम आपके सामने, या 14 के आसपास, अभी नेक्स्ट वीक आपके सामने ये शीट का लिंक आएगा और आपको वो परफॉर्मेंस दिखेगी. हर महीने में 2 बार इवैल्यूएशन होगा. बेस्ड अपॉन दिस इवैल्यूएशन वी विल हैव स्टूडेंट ऑफ द मंथ अवार्ड प्लस द बेस्ट इंप्रूवमेंट फ्रॉम द लास्ट मंथ, ताकि हर बच्चे को ऊपर आने का चांस मिले. एंड सेकंड स्टूडेंट ऑफ द मंथ मतलब जिसके टोटल स्कोर, अगर आप देखिए लास्ट कॉलम में टोटल स्कोर, जो ऑल द पैरामीटर्स को ऐड करके निकलेगा, टोटल स्कोर जिसका ज्यादा होगा दैट विल बी, ही और शी विल बी अवॉर्डेड एज द स्टूडेंट ऑफ द मंथ. डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप सबको ये फंडा समझ आ गया? Yes, sir. yes. Yes. ये पूछना है कि ये शीट कैसे, ये फाइनल स्कोर क्या होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. अगर मैं बात करूं फर्स्ट बच्चे की आकृति गुलाटी की, उसका जो क्लासरूम पार्टिसिपेशन में स्कोर होगा आउट ऑफ 5 होगा, ये आउट ऑफ 5 है ये, और ये जो स्कोर होगा मान लो 2 है, 2.5 है, 3 है, ये जो 400-500 टीचर्स की एवरेज रेटिंग के बाद आए. अगर आप मेरी गूगल शीट के टॉप पे देखिए, बिल्कुल टॉप पे, जहां पे दिस वे, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखिए एक फॉर्मूला एंटर्ड है जिसमें सारे टीचर्स के नाम है. वो हमारा काम है, हमने कैसे बनाया ये, and that has been divided by the number of teachers the kid has been trained for. हम सब साथ है ना? जी. Yes, sir. Yes, sir. इसमें और बच्चों में एक्साइटमेंट और जोश जगाने के लिए बड़ा प्रिंट आउट्स इस वीक क्लासेस में लग जाएंगे. टीचर्स उनके सामने मार्क किया करेंगे. ठीक है? और मुझे लगता है इतना ट्रस्ट हमें एक दूसरे पे होना चाहिए कि हम किसी के साथ बायस नहीं हो सकते. तो अगर किसी मेरे से अक्टूबर में कोई भी पेरेंट लड़ेगा नहीं, हाय हमारे बच्चे के नंबर नहीं मिले, प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस. आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग सम स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस इन द सिस्टम. एम आई क्लियर? मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है बाय दीज चेंजेस, 1 महीने में मेरे सारे बच्चे पूरे तगड़ी फॉर्म में आ जाएंगे. चाहे बच्चा ऑनलाइन लगा रहा है चाहे ऑफलाइन लगा रहा है, ऑल दीज पैरामीटर्स आर मेजरेबल. ठीक है जी? इसके अलावा हर टेस्ट के बाद विल गिव यू द रिजल्ट, जैसा हमने कल से शुरू किया. ठीक है? कल हमने एक चीज छुपाई और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने अपनी टीम को बोला रिप्लाई मत करो, वो मैं अब क्लियर कर देता हूँ. जो आप लोगों ने मैसेज करके, काफी लोगों ने उस मैसेज पे थैंक यू बोला और साथ ही एक फॉलोड अप क्वेश्चन पूछा. आउट ऑफ
वो आउट ऑफ फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है, बिकॉज अगर मैं वो आउट ऑफ बताऊंगा तो आप लोग शॉक से डर जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरे और मेरे बच्चों के बीच में रहने दीजिए, ठीक है, ये मेरे और उनकी बात है, बिकॉज आई ट्रस्ट देम टू इम्प्रूव। नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट होगा अक्टूबर में, वो आउट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, प्रॉमिस है। तब तक मैं श्योर करता हूं कि हमारे सारे बच्चे इंप्रूव करेंगे। गाइस, कैन आई प्रॉमिस ऑन योर बिहाफ? Yes, Yes, sir. sir. So, Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes. now my humble request to all of you. Now, so parents को मैंने थोड़ा सा बताया कि हमने कैसे करना है। Now, a very important role of the parent. मुझे सुनने में आया है बहुत सारे पेरेंट्स, ये मैं हमेशा बोलता हूँ लेकिन कुछ लोग आज शायद मुझे पहली बार सुन रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत तंग कर रहे हैं बच्चों को। कृपया मेरे स्टूडेंट्स को और मेरे बच्चों को तंग मत करिए। मुझे आपके घर में कंपैरिजन का माहौल नहीं चाहिए। आपके सामने शीट जरूर होगी, लेकिन उस शीट का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के मार्क्स में घुसे। आप कृपया अपने बच्चे की रो पे ध्यान देना, ऊपर नीचे कृपया ध्यान मत देना। ये मेरी आप सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। इफ यू सी, तभी हम 2 टाइप के अवार्ड्स निकाल रहे हैं, 1 स्टूडेंट ऑफ द मंथ, 2 द बेस्ट इंप्रूवमेंट ऑफ द मंथ। मेरा ज्यादा फोकस 2 पे है, बिकॉज आई बिलीव एवरी किड मस्ट इंप्रूव। मैं 1 मिनट पानी पी लूं, मैं गिर जाऊंगा। पानी बस कर दे, कितनी रिकॉर्डिंग करेगी? जो ये मैं होगी, खत्म हो जाएगी, तुम्हारी फोन की मेमोरी खत्म हो जाएगी। कमिंग बैक, हर बच्चे का टारगेट मेरे लिए है पिछले मंथ से इंप्रूवमेंट दिखाना। अगर मैं स्टूडेंट ऑफ द मंथ सिर्फ दूं तो कुछ हर क्लास में, इफ आई रिमेंबर इट माय स्कूल टाइम, तो हर क्लास में, क्योंकि मैं कभी फर्स्ट नहीं आया, आई वाज ऑलवेज अ मिडिल लेवल स्टूडेंट, ठीक है। और मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, बी स्ट्रीट स्मार्ट इन लाइफ, एटीट्यूड सही रखो, रिजल्ट अपने आप फॉलो करेंगे और आप सक्सेस। मेरा लक्ष्य यहाँ पे बच्चों को अच्छे कॉलेज तक पहुंचाने के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज देना, ठीक है। सो कमिंग बैक, सो हम कंपैरिजन मोड में बिल्कुल नहीं जाएंगे। स्टूडेंट ऑफ द मंथ के अलावा इंप्रूवमेंट से ये होगा कि हर बच्चे के पास एक मोटिवेशन है कि मैं लास्ट मंथ के स्कोर को अगर बेटर कर दूं तो आई कैन गेट अ अवार्ड, ठीक है। वो अवार्ड कैन बी ए सर्टिफिकेट, मेडल, जो अभी मैंने ऑनेस्टली सोचा नहीं है कैसे करेंगे। आपकी जो मुझे सपोर्ट चाहिए, प्लीज लेट्स, दिस इज आप आई डोंट नो हाउ यू ट्रीट मी, बट ट्रीट मी एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली फॉर नेक्स्ट 1.5 year. Please do not create suffocating atmosphere at your places. मैं नाम नहीं ले रहा, बट मेरे से बच्चे काफी बात करते हैं। जनरली मेरा व्हाट्सएप बच्चों की प्रॉब्लम से भरा होता है, मेरा इंस्टाग्राम भी बच्चों की प्रॉब्लम से भरा होता है, रैंडमली बच्चे भी। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों पे, स्पेशली इन दिस टाइम, बिकॉज फीसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बचपन। I understand there could be a financial burden, there could be a lot of investment which you guys are making, and I respect that. We do not have any right to tell kids कि हम ऐसा कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, आपका पेन समझता हूं, लेकिन बच्चे से वो इंस्पायर नहीं हो रहा है इससे। वो मुझे आपकी सपोर्ट इंस्पिरेशन में चाहिए, डंडा मैं ही बहुत कर दूंगा। आप प्लीज 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 अंडरस्टैंड whatever has happened with these kids over last 1.5 year and the way they have tackled it is not easy. Imagine when we were of their age, और हमें 1.5 साल 1.25 साल घर बैठने के लिए बोल दिया जाए, और at the age where we have to blossom, 10th क्लास जो सबसे पावरफुल क्लास होती है पहले 10 साल ऑफ स्कूलिंग की, उसमें ये मेरे बच्चे घर बैठे हैं, टॉर्चर सहा है उन्होंने घर बैठ के, टीचर्स का, स्कूल के और ट्यूशन टीचर्स का, चाहे वो हम ही हो, और उसके अलावा सारा दिन माँ बाप को घर देखना कितना मुश्किल है। तो वो सहा है इन्होंने, मैं उसकी वजह से इन सबके साथ हूं। मैं देखो, मैं आपको किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट काइंडली मिन्स योर वर्ड्स व्हेन यू आर डीमोटिवेटिंग देम। आई वुड नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू डीमोटिवेट माय किड्स। मैं उनमें इतना भर दूंगा पैशन, एनर्जी, डिसिप्लिन, फोकस, कि एक टाइम के बाद उनको नेगेटिव वर्ड से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको, बट उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बाय गॉड मैं घर आ जाऊंगा आप लोगों के डिनर करने,
और मैं बहुत लड़ाई करूंगा आपसे। आई डोंट वर्क एज अ टिपिकल मेंटर, आई वर्क एज अ क्रेजी वन। बच्चे आपको बताते होंगे, आज आपने देख लिया अपने सामने, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए वो रिलेशनशिप जो एक टिपिकल इंस्टीट्यूट में होता है और बच्चों में होता है या पेरेंट में होता है। दिस इज योर फैमिली, इफ दिस इज जेनेसिस इज योर फैमिली, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली, सो आई हैव द राइट टू टेल यू एंड यू हैव द राइट टू टेल मी कि सर हमारे जेनेसिस में ये कमी है, आप मुझे बताओ, मैं दिन रात एक कर दूंगा उसको इंप्रूव करने, बिकॉज वी लिव फॉर किड्स। लेकिन इंकरेजमेंट, बिलीव रखेंगे, अगर हम नहीं बिलीव रखेंगे उनमें तो वो नहीं कर पाएंगे। चीजें आसान नहीं है, मेडिकल नॉन मेडिकल बहुत चैलेंजिंग है। और कुछ मेरे भोले पेरेंट्स ने बच्चों को, बेचारों को रेगुलर स्कूल में डाल दिया है, तो उनके लिए मेरे लिए एक ही है, प्लीज बैलेंस कर ले। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, मुझे नहीं समझ आया आपने, आई एम सो सॉरी टू पुट इट दिस वे, बट आप समझदार हैं, आई ट्रस्ट योर विजडम। बट आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चा सुबह स्कूल जाएगा और शाम को कोचिंग लगाएगा और 5 घंटे पढ़ेगा? आपने ये कैसे किया है? आई डोंट नो। आपकी क्या विजन है? आई डोंट नो। आपने किन लोगों को सुन के डिसीजन लिया? आई एब्सोल्युटली डू नॉट नो। बट प्लीज, अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल भी चूज करना है, कर लिया है, सेकंड काउंसलिंग में प्लीज हाथ जोड़ के लिखवा लो मुझसे, ये चूज अ स्कूल जहां पे हफ्ते में 1 या 2 दिन से ज्यादा जाना मत पड़े। आप नहीं जानते बच्चा बर्नआउट होता है, और वो आप अभी नहीं देखोगे, वो आप 6 महीने बाद उसके इफेक्ट देखोगे, जब सेल्फ स्टडी का टाइम मिलना बंद हो जाएगा और वो क्लास में इतना पीछे रह जाएगा बाकी बच्चों से। हम सब साथ हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. मतलब what we need to do is we'll make them disciplined and I trust my students a lot. मैं बच्चे आप सब पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन you dare break my trust, I'll screw your happiness. ठीक है? हम टेस्ट मिस नहीं करेंगे, और जो वर्स्ट चीज हम कर रहे हैं, मैं ब्लंटली बोल रहा हूं, जो हम टेस्ट में चीटिंग करते हैं, ये मैं आप सबको आज आमने सामने करवा देता हूं। जो भी बच्चे टेस्ट में चीटिंग कर रहे हैं, वो अपने आप से आज एक प्रॉमिस करें कि मैं कम वॉट में मैं फेल हो जाऊं, मेरे 5 नंबर हैं या मेरे 50 हैं, मैं एटलीस्ट जेनेसिस के टेस्ट में चीटिंग नहीं करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट आज मुझसे अपने आप से एक प्रॉमिस करें, अभी आप करेंगे सब, मैं भी आप सबको जरा खड़े होकर प्लेज दिलवाता हूं कि कम वोट में कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे का जो भी स्कोर आए, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, मैं उसको इनकरेज करूंगा कि तू अपने स्कोर को पिछले वाले को बीट करे, और मैं ये नहीं पूछूंगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स कि हाईएस्ट किसके हैं। सिर्फ मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा अपने बच्चे से, क्या ये तेरा बेस्ट स्कोर है? और अगर उस बच्चे का आंसर आता है नो, तो मैं इसको बताऊंगा बेटा कैसे इंप्रूव करना है, ना कि मैं ये बोलूंगा यार बैच के टॉपर के इतने हैं तेरे। पेरेंट्स, कैन आई ट्रस्ट यू फॉर दिस? Yes, sir. Yes, sir. हमें ये कहना है कि मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब कि बच्चा चीटिंग करता क्यों, मतलब हमने इम्प्रेस किसको करना? मुझे तो नहीं कर सकते, बिकॉज मैं तो क्लासरूम में देख लेता हूँ बच्चे की लेवल। पेरेंट के डर से करते हो, तो वो डर, मैं आपको रिक्वेस्ट है बच्चे, वो अगर किसी के पेरेंट ने बच्चे ये बोला, डांटा कि यार ये है, तेरे ये नंबर आ रहे हैं, तेरा कुछ नहीं होना, बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेडिकल का बच्चा 12 घंटे पढ़ता है, ये पुराने गाने नहीं गाने। हम 4.5 आवर्स की सेल्फ स्टडी से शुरू करने जा रहे हैं आज से मिनिमम 4.5 आवर्स की सेल्फ स्टडी चाहिए। मैंने सेल्फ स्टडी बोला है, स्कूल स्टडी और कोचिंग नहीं बोला। हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 घंटे की क्लासेस हैं, इतना टाइम बच्चा पढ़ेगा। अब जो बच्चा रेगुलर स्कूल जा रहा है, वो अपने पेरेंट से डिस्कस कर ले और पेरेंट की हेल्प ले कि कैसे टाइम टेबल में 4.5-5 घंटे की सेल्फ स्टडी निकले। लेट द पेरेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द किड, एंड माई किड्स प्लीज अंडरस्टैंड, if I am asking the parents to trust you, if you break that trust, then you know that what will happen. I'm not scaring you, but then you would not exist for me. Am I clear? ये बच्चों, I am clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And last before I open the FAQs, lastly to all my parents, first to the parents, लेट्स मेक किड्स अकाउंटेबल। मैंने ये बोला कि उनको फ्रीडम देनी है, उनको मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देना, जितना मर्जी इमोशनल हो जाए, मतलब चाहे बच्चा लेट के रोल पोल होना शुरू हो जाए, नहीं दे दो तब भी नहीं देना।
क्लियर है? कुछ भी हो जाए नहीं देना, 1.5 घंटा दिन में फिक्स कर लो। आपने अभी वर्कशॉप होते ही खत्म कर देना, ये कॉन्वर्सेशन पूछ के। वो 45 मिनट दिन में 2 बार होने चाहिए। मैं बहुत मतलब बच्चों से बहुत फ्रैंकली बात करता हूँ, और मैं इतना तक बोलता हूँ कि आशिकी का टाइम नहीं है ये 1.5 साल व्हाट्सएप ग्रुप्स का टाइम नहीं है। आप किसी ग्रुप में एडमिन हो, आपको बहुत खुशी होती है। मैं चाहूंगा आप किसी कंपनी में एडमिन लेवल पे जाओ, वो बेटर है एज कम्पेयर टू बीइंग एन एडमिन ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? लेकिन जब अब कमिंग बैक, जब उस बच्चे का फ्री टाइम है, अब अगर हम पूरे दिन में सिर्फ मोबाइल 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा पूरा दिन पढ़ेगा। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि जब उसका फ्री टाइम है तो कृपया टॉर्चर ना करिए। जब उसका ब्रेक, आपके साथ वो एक टाइम टेबल शेयर कर देगा, वो टाइम टेबल में अगर उसने लिखा हुआ है कि ये मेरा ब्रेक टाइम है, तो रिस्पेक्ट दैट ब्रेक टाइम। उसमें उसको मत बोलो कि तू क्या फ्री बैठी है, क्यों फ्री बैठा है, जाके पढ़ ले। लेट्स वैल्यू इट। एक बार ट्रस्ट देके देखते हैं पूरा, ठीक है जी? उस टाइम पे ट्रस्ट करेंगे, पढ़ने के टाइम पढ़ेंगे। अगर मेरी 4.5 आवर्स की सेल्फ स्टडी है, तो मुझे ये हफ्ते में 6 दिन चाहिए। अगर मेरा बच्चा हफ्ते में 6 दिन ये कर रहा है, तो 7वां दिन वो डिजर्व करता है कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द एकेडमिक्स। टेक हिम आउट, टेक हर आउट, टॉक टू हिम, टॉक टू हर। आपकी कॉन्वर्सेशन बच्चों के साथ सिर्फ पढ़ाई पे नहीं होनी चाहिए, थोड़ा लाइफ के बारे में भी पूछ सकते हैं। प्रेशर बहुत है बच्चे पे भी बेचारे। अगर आप ऐसी बातें करते हैं, तो I'm very very proud of you as their mentor. I'm proud of each of the parent जो पढ़ाई के अलावा भी बात करता है। लेकिन अगर आपकी सारी कॉन्वर्सेशन पढ़ाई से रिवॉल्व कर रही है, क्या नंबर आए, कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, कितने नंबर आ जाएंगे, कितने घंटे पढ़ा, तो हम सही नहीं कर रहे हैं। I am not teaching you parenting, I am just guiding you about the parenting of a teenager, just being little more experienced than you. Am I clear? Yes. हमारे हाथ में आज से पेरेंट्स 2 डंडे होने चाहिए, 2 डंडे। एक प्यार वाला डंडा जो इंस्पिरेशन के लिए है, एक दूसरा डंडा, ये छोटा दिख रहा है बट है नहीं, छोटा होना नहीं चाहिए, मेरे पास दिखा नहीं मुझे कुछ आसपास। जो छोटा डंडा देखने में है, दैट इज अ स्ट्रिक्ट डंडा विच इज फॉर किड्स टू बी अकाउंटेबल। मैंने फ्रीडम देने को बोला है, मैंने लीवरेज लेने को नहीं बोला। We ensure that they will study 1.5 hours. I ensure that we will give you regular reporting. चाहे मुझे आपको पर्सनली कॉल करके बोलना पड़ जाए कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, ऑफलाइन भेजिए, नंबर 1। जिनका जेन्युइन रीजन है, आई रिस्पेक्ट दैट, हम अपनी तरफ से पूरी कमिटेड क्लासेस चलाते रहेंगे, नंबर 2। नंबर 3, लेट्स ट्रस्ट ईच अदर। ये पैरामीटर्स वाली लिंक मैं आपको शेयर करूंगा जब ये भरने शुरू हो जाएंगे। ट्रैक करो, कंपैरिजन नहीं, ट्रैक बोला, ऊपर नीचे भूल जाना, अपने कॉलम पे हाईलाइट फोकस करना, और अगले महीने देखना कि इस कॉलम में हर महीने में 2 बार भरेंगे टीचर्स, ठीक है जी? आपको किसी टीचर का पर्सनली नहीं दिखेगा, आपको एवरेज आउट करके दिखेगा। अगर आपको जानना है कि किस में ऊपर नीचे है, देन यू कैन कॉल द एडमिन, वो आपके साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी शीट को शेयर कर सकते हैं। शेयर नहीं करेंगे, आपको बता दें। क्लियर? And coming back to the last point of the session, I'm so sorry I missed the point. देखिए, मार्क्स इंप्रूव करने पड़ेंगे बेटा। So if I ask all of you or parents that should you be worried, answer is yes, we should be worried. Generally मैं कभी नहीं बोलता होगा, but seeing the scores of the tests which have happened in last 2 months, the 2 grand tests, we take 1 grand test a month. What happens in a grand test? पूरे महीने का जो सिलेबस होता है, वो प्रॉपर जेई या नीट के पैटर्न पे, डिपेंडिंग बच्चा कौन सा कॉम्पिटिटिव के लिए बैच में है, उसका प्रॉपर पैटर्न पे टेस्ट होता है आउट ऑफ 300 और 720। जो मेडिकल का बच्चा है उसका 300 का होता है, सॉरी, जो मेडिकल का बच्चा है उसका 720 का होता है, और जो नॉन मेडिकल का है उसका 300 का, ठीक है? लेकिन मैं आपसे एक अब जो आपको कल मार्क्स मिले हैं, प्लीज आप उसके बारे में इनसे कोई डिस्कशन मत करना, छोड़ दो। एक बुरा सपना सोच के छोड़ देते हैं। आज से 4.5 घंटे की कमिटमेंट अपनी हो चुकी है सबके साथ। किसी बच्चे ने एब्सेंट था टेस्ट में, तो आप उससे जरूर पूछिए कि तूने हिम्मत कैसे कर ली एब्सेंट होने की, और मुझे और उससे प्रॉमिस लीजिए कि वो नहीं होगा रिपीट। लेकिन एक फेथ दीजिए, टेस्ट में टर्न आउट होना बहुत जरूरी है, आना जरूरी है। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो तो ऑफलाइन टेस्ट के लिए भेजे,
बट अगर ऑनलाइन भी टेस्ट कराते हो तो प्लीज इंश्योर वो 3 घंटे फिर आपको देखने पड़ेंगे वो चीटिंग ना हो। नंबर 2, मेरी रिक्वेस्ट है दिल से सारे बच्चों के लिए, अगर आप, मैं बहुत बहुत दिल से बोल रहा हूं, अगर आप, मैं मेंटर आपको वो कर रहा हूं और अगर मैं आपको लाइफ में ये नहीं सिखा पाया कि चीटिंग नहीं करनी, तो आई थिंक आई फेल्ड एज अ मेंटर। Have guts to tell your parents I have failed. It's okay. Don't show them the fake marks. Don't raise the fake expectations. And my last request to all the parents is, we would never compare. We would never scold child. अगर वो आपको आके बोल रहा है मम्मा मैंने ऑनेस्टी पेपर दिए, मेरे 50 नंबर आए हैं 300 में से, कोई चक्कर नहीं है। मैं अब आपको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूं। अगर मैं जेई की बात करूं, जो जेई एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं व्हाट स्कोर इज अ गुड स्कोर इन +1 +2। So if I'm a JEE aspirant, anything around at this level, abhi initially, +1 ke initial mein, anything around 120, 140, 150 is a very, very good score out of 300. I repeat, anything out of anything from 120 to 150 in +1 is a decent score. And for NEET aspirants, 720 mein se, if we can keep the score somewhere between 450 अराउंड इन +1, 450 जो इस बार पूरे बैच का बना के भी नहीं बना होगा, ठीक है, दैट्स ओके। 450 के अराउंड इज अ गुड स्कोर। बच्चा मार अभी इसलिए खा रहा है, अब ये शायद आई विल टेक द ब्लेम। कल हमने वी हैड अ टीम मीटिंग फॉर 2 आवर्स येस्टरडे एंड हमसे छोटी सी गलती हुई विच आई एडमिट। छोटी सी गलती हमसे ये हुई कि हमने बच्चों को शायद नेगेटिव मार्किंग के पेपर को अटेम्प्ट करना नहीं सिखाया। So this week, all the teachers will train them in the classes how to attempt the grand test. ठीक है जी? So based upon that, the scores will improve. So anything around 450, 470 is a decent score in a NEET to begin with. Generally, we have to take that score at the end of 12th, 570, 580 के आसपास to get into a good government college. And when we talk about JEE, 120, 130 पे PEC पे आराम PEC and NIT में admission हो जाता है। 170 पे we get top NITs in the country. 170, 180, 200 के आसपास। क्लियर है? अब आप में से कोई भी मुझे डांटना चाहता है, I'm opening the round for FAQs, आप खुद भी बात कर सकते हैं, डांट सकते हैं। Anything you want to ask, please raise your hand or you can send the doubt in the chat. Hello sir, Jasmine father this side, son saying. Hi sir, very good evening, good afternoon. Very good afternoon sir. Sir, just a small request I wanted to make to you. As I've already put this into your knowledge that we have already transferred to Jaipur location. Yes, so there is recently I think some study material has been distributed to the students. So what I would urge or request you to send that if possible, could you please send that material to the Jaipur address if you provide you that by courier or by postal address? सर अभी हमने स्टडी मटेरियल बांटा नहीं है, अभी हमने कल से बांटना शुरू करना है। आप एक बार अपना पोस्टल एड्रेस ऑफिशियल व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको जयपुर कोरियर करवा दूंगा, कोई इशू नहीं। Alright. वो सर हमने पूरे साल में 3 बारी में बांटना है, तो जो फर्स्ट फेज का है I'll get it courier for you. Alright. And we have already got her admitted to one of the school in Jaipur, which is that is also on dummy pattern. ठीक है सर, perfect. We have managed that. No issue, sir. I know complete case of Jasmine sir. आप बेफिक्र रहिए, you can talk to me anytime. ठीक है जी? All right. Thank you, sir. Thank you so much. Any other parent who wants to come in? अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं रिलेटेड टू एकेडमिक इशू, लेट मी बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं रूल्स। in Genesis we have divided departments for academic concerns. In 11-12 there is an academic in charge जिनका नाम है सुंदर sir. He is the academic in charge of 11-12. चाहे वो आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, he is tracking every performance. I am also tracking. If you want any kind of like जो आज हमने बातें की उस regarding you want to talk to me, आप मेरा नंबर बच्चे से ले लेना। There is a special WhatsApp group जो मेरा और स्टूडेंट्स का बना हुआ है, जिसमें मैं और बच्चे हैं सिर्फ, ठीक है, वो आप उसमें से मेरा नंबर ले लेना। लेकिन I do not prefer talking over a phone because of my schedule. You can drop me a WhatsApp message. I would try reverting you, and I'll be very honest. कभी-कभी because of my schedule I am not able to reply. तो आप एक बार hello द्वारा लिख के भेज देना, 1-2 दिन बाद वो ऊपर आ जाएगा WhatsApp message, then I'll personally reply.
ठीक है जी. In case anyone feel like meeting us, अक्टूबर में we'll have next round of PTM, so we'll meet on the PTM. अगर किसी special situation में you feel like meeting in urgent basis, आप जब मर्जी ऑफिस आइए, प्रायर टाइम लेके, will definitely meet you. आप किसी भी टीचर से आके मिल सकते हैं. ठीक है जी. एक चीज है सर, जी 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 मोबाइल तो ले लिया बच्चे से, अब जी. वो कहता है कि मुझे गूगल पे सर्च करने हैं, वो कंप्यूटर लेके बैठ जाता है. सर गूगल पे क्या सर्च करना है वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. क्वेश्चन आंसर सर्च करने का, तो मुझे क्वेश्चन आंसर सर्च करने हैं. सर अगर क्वेश्चन आंसर गूगल से सर्च कर रहे हैं तो हम बुक से पढ़ के खुद आंसर कैसे बनाएंगे? आप खुद देखिए सर, अगर हमने कोई असाइनमेंट या वर्कशीट दी है या हमने क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए हैं, अगर वो गूगल बाबा नहीं करने हैं, तो बात है ना, अगर वो गूगल नहीं करने हैं तो हमें क्या आया, बच्चे को क्या आया? यही तो रोकना है सर. क्योंकि बच्चा इतना, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे की इंटेंशन नहीं है पढ़ने की, बच्चा बेचारा इतना भोला है, जब वो गूगल देख रहा है तो साथ ही ऊपर व्हाट्सएप चैट का नोटिफिकेशन आया, साथ ही इंस्टा पे आया, तो बेचारा शुरू वो गूगल से होता है सर, और एंटर वो एंड करता है सर यूट्यूब पे कोई फनी वीडियो देखकर. कैसे चलेगा सर? तो उसको प्लीज, हाँ जी. मैं तो मना कर ही रहा हूँ इसको, और आप इसको पास्ट में समझाना कि सर समझाना नहीं है सर, सर ऑप्शन नहीं है इनके पास अब. हाँ, कोई ऑप्शन नहीं बोल है. दो कि अगर तूने जेनेसिस पढ़ना है तो ये फॉलो होगा, नहीं तो आप इसको कहीं और डाल दो. सर मेरी तरफ से खुली छूट है. ठीक बात है. ठीक है ना सर. ये मैं सर आपको ये नहीं बोला कि इनको समझाना है, इनको मनाना है, वो टाइम निकल चुका है सर. इनसे ले लेना है, इनको देना है 1.5 घंटा दिन में. वो मैंने आपको बोला, आप पास की बात कर रहे हैं आई थिंक, हाँ जी, है हाँ ना. वो हो सकता है आप आज ही लेट जाए और कारपेट पे रोल पोल करे कि दे दो पापा दे दो, हम नहीं देंगे. जी. ठीक है. नहीं, वो तो उसके लिए कंप्रोमाइज कर लिया कि मोबाइल नहीं रखूंगा. और मैंने आज आपने बोला है, मैंने उसको पहले बोल दिया था कि घंटा, कोई भी 1 घंटा आप मोबाइल मेरा यूज कर लो. कर लो, कोई चक्कर नहीं. 1 घंटा कर लो, 1 आवर. 1.5 घंटे में जो करना है करो. चलो आपने 1.5 घंटा कर दिया, मैंने 1 घंटा अलाउ किया था. हाँ, आधा घंटा सर मेरे लिए, मेरा रिस्पेक्ट कर लो. और ये जो है ना गूगल पे सर्च करने वाला, ये अभी भी चल रहा है. हाँ जी सर. गूगल पे जो सर्च करता है अभी भी इसका चल रहा है. कंप्यूटर गूगल हम सर, क्या हम सिंपल क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं, क्या एंट्रेंस एग्जाम में गूगल अलाउड है? क्या एंट्रेंस एग्जाम में गाने लगा के पढ़ना अलाउड है? तो हम यहाँ पे जब हम घर पे गाने लगा के कैसे होमवर्क करते हैं? क्या अगर मैं, आप जो बच्चा सर ये बोलेगा मैं गाने लगा के पढ़ूंगी, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका नेक्स्ट जीटी में उसको अलग रूम में बिठाऊंगा और वहां पूरे गाने फुल वॉल्यूम पे चलाऊंगा. उसके नंबर नहीं आएंगे और उसको डंडे हम सब मिलके मारेंगे. ऐसे सर कैसे जीटी? हम क्लास में सर गाने लगा के पढ़ाएंगे, हमारा ऐसे पढ़ाते हैं, हमें बड़ा सर ऐसे थोड़ी होता है सर. हमने घर पे एंट्रेंस एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट करना है. अगला ये हमारे एंड पे से कल हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया मीटिंग में कि अगले जो जीटीज होंगे, हम वो पहले तो संडे को लेंगे ही नहीं, क्योंकि संडे को हमारे पास स्टाफ थोड़ा कम होता है, बिकॉज छुट्टी होती है तो चीटिंग हो जाती है. हम लेंगे वर्किंग डे पे और पूरे माहौल में टेस्ट लेंगे कि बच्चा हिल भी ना पाए. ठीक है सर. एनीथिंग एल्स एनी पेरेंट वांट्स टू से? थैंक यू सर. हाँ जी सर. सर ये पेड सेशन है, 1000 रुपए अलग जमा होना है इसका, 30 मिनट के लिए. थैंक यू. आपने काफी अच्छा, आपसे जो आपने आज बताया, स्पेशली फोन के बारे में बताया. मैंने तो इसको अपना फोन दे दिया था अच्छे वाला. मैंने कहा, ये कहते रहते थे कि भाई, मेरे को बेटी कहती थी मन्नत कि मेरा तो फोन के बिना चलता नहीं है, गुजारा ही नहीं होता फोन के बिना, तो मैंने अपना फोन दे दिया था इसको. तो अब जैसे आपने कहा वैसे ही करेंगे, फॉलो करेंगे. सर देखिए सर, मेरा, आप जब मुझे आज बच्चों से गालियां बहुत पड़ेंगी, बट मैं तैयार हूँ क्योंकि मुझे इनका करियर बनाना है. सर जब वो जेनेसिस बच्चा आ रहा है तो उसको फोन दे दो, कोई इशू नहीं है. यहाँ पे तो हम देख लेते हैं, ठीक है ना. क्लासरूम में फोन बच्चा चला भी नहीं पाता, हम ले लेते हैं बच्चे का फोन, वापस भी देते हैं. हाँ जी. वो ये सारा हो रहा है जब सेल्फ स्टडी, जब दिन में सेल्फ स्टडी का टाइम है, तब फोन नहीं होना चाहिए. ठीक है सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एनीबडी एल्स हु वांट्स टू कम इन? हेलो सर. हाय मैम. हाँ जी. स्कूल के बारे में पूछना था मुझे. हफ्ते में 1 दिन तो स्कूल लगानी है ना इन लोगों को, क्योंकि इन सब ये सब तो ठीक है, फोकस करना है ये सब सब्जेक्ट पे, लेकिन इंग्लिश और कंप्यूटर भी तैयारी करनी है. एक दिन बिल्कुल ठीक है मैम. हाँ, तो 1 दिन कौन सा दिन सर? अभी तक तो कोई छुट्टी नहीं हुआ है. मैम एक दिन सैटरडे शुरू करेंगे मैम स्कूल. जो अगर आप हमारे थ्रू स्कूल में गए हैं तो सैटरडे मैम. हाँ, उसी में है. हाँ जी मैम. तो मतलब अभी तक तो नहीं हुआ ना, इसलिए अभी शुरू होगा बस मैम. अब सारे स्कूल ऑलमोस्ट पैरेलली क्लासेस शुरू करेंगे. जैसे मॉडल स्कूल की शुरू हो जाएंगी तो उनकी भी शुरू हो जाएंगी मैम सैटरडे को.
ओके सर। इजाजत है मेरे को। ओके थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैम। हाँ जी सर मुझे कंफर्म करना था कि जैसे आपने ये पैटर्न बताया ना कि ऐप में आ जाता है, शेड्यूल आ जाता है कि टेस्ट वीकली टेस्ट कब होंगे और मंथली जो जी, टेस्ट मैम। होता है वो कब होगा। जी, तो मैम। सर सितंबर का रेडी हो चुका है? मैम 1st to 7th के बीच में डल जाता है, तो आई थिंक ट्यूसडे से पहले आपको ऐप पे दिख जाएगा। ओके ओके ठीक है जी, आप ट्यूसडे एंड ऑफ द डे पे देख सकते हैं मैम। राइट सर। ठीक है जी। थैंक यू। मेरे को एक पेरेंट से चीज पूछनी थी। वी वर प्लानिंग कि जैसे एक स्टूडेंट के साथ हमारा अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, तो शुड वी मेक अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप ओनली विद द पेरेंट्स, इनकी बुराइयां करने के लिए? वेरी गुड सर, वेरी गुड। नो, बुराइयां इज अ रॉन्ग वर्ड, मैं तो मजाक कर रहा हूं, बट वी वांटेड टू हैव अ लिटिल फास्टर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस। शुड वी मेक इट? यस सर। उसमें कोई भी पेरेंट हमें डांटेगा नहीं, पब्लिकली बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, just kidding, we'll make it. I'm planning to make it. We'll make it in coming days. ठीक है जी, thank you so much, have a good day, bye bye, take care, enjoy your Sunday, thank you so much. Thank you, sir. Bye guys, thank you so much. Bye guys, love you, bye bye. Happy Teachers Day, sir. हाँ जी, sir, you Happy want to Teachers say- Day, sir. So anyone wants to say something can stay back. बाकी सब जा सकते हैं। ठीक है जी, thank you.